Very very good evening to all. कैसे हैं आप सब? So I welcome you all in this today's session, that is Madhya Pradesh Judicial Services Examination Paper Analysis, that was held in 20th March 2021. So it's a big day. It's a big day for all of us. It's a big day for Vidhigyans, because in this particular situation, इस परिस्थिति में ये खुशी का संदर्भ इसलिए भी है क्योंकि हम आज के सेशन में स्पेसिफिकली उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, उनका एनालिसिस देखने वाले हैं, which has been already asked in the Madhya Pradesh Judicial Services Examination paper of 2021, as well as that इसमें भी एक खुशी की परिस्थिति ये भी है कि in one of the mock test that we have launched before the day of Madhya Pradesh Judicial Services Examination, that is 20th March. In that particular mock test, you will see, and by lots of calls and lots of messages that we are getting from the aspirants and candidates, not only from this particular state of Madhya Pradesh but out of the state as well, कि उस mock test से you can imagine, you can see, you can find out how many questions have been asked and that are matchable with the real question paper. So it was approx, if we divide it in the two categories, that is exact questions and the relative questions. So relative questions in the sense that the questions are different in kind of language and nature, but those particular questions have been asked from the same provision of that particular statute or law. And some of the questions and the quantity of those particular questions are 5 to 6 that are exactly the same that we have provided in the Vidhigya mock test civil judge preparation, and that too launched before the day of examination, real examination of 20th March 2021. So we will talk about it further because we are going to deal with the first part of analyzing these particular questions that has been asked in the Madhya Pradesh Judicial Services Examination. So in part one, we will deal some of the specific subjects that you will know. But before talking about the question paper, the exact subjects that we are dealing this particular part one, that is Indian Contract Act, that is Specific Relief Act, that is Negotiable Instrument Act, that is Limitation Act, and the local laws of Madhya Pradesh, that is MP LRC and MP Accommodation Control Act. So before going to those particular provisions, those particular questions, I want to talk about the old trained versus new trained, and this is the big thing that we are going to talk about. और इस ओल्ड ट्रेंड और न्यू ट्रेंड के इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले मैं रामधारी सिंह दिनकर साहब की उन शब्दों को उच्चारित करना चाहूंगा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया. तो इन पंक्तियों से हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने, क्योंकि कंपटीशन हो या जीवन का रण हो, ये दोनों ही किसी युद्ध से कम नहीं है. प्रतियोगिता हो या जीवन का रण हो, ये युद्ध से कम कतई नहीं है. तो हमें इस फैक्ट को, इस तथ्य को, इस सत्य को अपने हृदय स्थल पर अवधारित करते हुए, सजग रहते हुए प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस पर्टिकुलर ट्रेंड से एमपी सिविल जज गवर्न होता था, उस ट्रेंड से हम किस तरह से एक डिफरेंट ट्रेंड में मूव कर चुके हैं. तो दिस इज अ काइंड ऑफ demonstration, this is kind of indication to all of the aspirants. Those particular aspirants are working for or preparing for the judicial service examination of Madhya Pradesh. क्योंकि अगर हम previous trend की बात करें, old trend की बात करें, you will find कि at least MP और छत्तीसगढ़ की अगर हम एक cumulative form में देखें, एक समेकन फॉर्म में देखें, तो you will find कि यहाँ पर क्वेश्चंस का जो क्राइटेरिया है, पूछे जाने का जो ट्रेंड है, दैट इज समथिंग लाइक द फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस, मींस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक प्रोविजन, व्हाट इज प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, व्हाट इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, इज देयर एनी पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन, तो उस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन से.
तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस फैक्ट को क्लियर करना बेहद जरूरी होगा कि ओल्ड ट्रेंड वर्सेस न्यू ट्रेंड में हम किस तरह मूव कर रहे हैं। मेरी समझ से ज्यादातर कॉम्पिटिटर्स ने शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, क्योंकि ओल्ड ट्रेंड में बने रहने के लिए आपको कुछ भी नया नहीं करना था। जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे थे हम उसी ट्रेंड में लगभग बने हुए थे। लेकिन न्यू ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर अगर आप देखें तो यू विल फाउंड कि इट्स अ काइंड ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच पेपर, एक संतुलित वे में अपनाया गया एक वे है, जिसमें आप देखेंगे कि there are certain questions which are related to the provision itself, means direct question based direct provision based questions, and there are certain questions which are based on application of the law, क्योंकि ये एक नया ट्रेंड इस बार से सेटअप हो चुका है कि अब आपको सिर्फ प्रावधानों पर अपनी समझ परिपक्व नहीं करनी होगी, आपको प्रावधानों यानी प्रोविजन के साथ साथ आपको उसके एप्लीकेशन को भी ध्यान में रखना होगा। हाउ वुड यू अप्लाई दोस पर्टिकुलर लॉज, किस प्रकार से आप उन विधियों को, उन कानून को एक गिवन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में अप्लाई करेंगे, एक दिए हुए तथ्य और परिस्थितियों में उसे लागू करेंगे, प्रवर्तित करेंगे। तो दिस न्यू ट्रेंड इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर है, और आप सबको मेरा ये एक सजेशन है दैट यू हैव टू प्रिपेयर अपार्ट फ्रॉम द थिंग दैट इज इन द ट्रेंड, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेट जुडिशरी के लिए अपीयर हो रहे हो। यस, being a aspirant we have to know कि what is the exact trend in any of the specific state judiciary, state competition exam, जो भी प्रतियोगिता आप अपीयर हो रहे हैं, जो भी कंपटीशन में आप अपीयर हो रहे हैं, this is basic thing that you have to know the trend, you have to be capable to know the trend of those particular exams. Yes, it is, but we have also know, हमको ये भी बात जानना चाहिए, हमारी नॉलेज में ये फैक्ट भी होना चाहिए कि we only not have to confine ourselves in those particular things. हम उन पर्टिकुलर वस्तुओं से, उन चीजों से, उन क्वेश्चन से स्टक नहीं कर सकते, हमें उसके बियॉन्ड अपनी प्रिपरेशन के स्तर को ले जाना चाहिए। So far as concerned to candidates who were preparing for the Madhya Pradesh Judicial Service Exam in this particular state specific, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपनी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं एक वीकनेस इस तथ्य को भी दर्शाते थे कि वी आर नॉट ऑलवेज फाइंडिंग कि हम किसी दूसरे स्टेट के जुडिशियल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करें। ये मिस्टेक हमने की, दैट्स व्हाई वी आर इन द लो पोजीशन। और कोई भी पर्टिकुलर, अब इस क्वेश्चन पेपर को मैं एक बैलेंस्ड अप्रोच इसीलिए कह पा रहा हूं बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, सम ऑफ द क्वेश्चंस दे आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम ऑल ऑफ द जोन्स। कैसे? कुछ डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन प्रोविजन बेस्ड आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन बेस्ड लॉ पे आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन आपके इलस्ट्रेशन बेस्ड आ चुके हैं, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके रिसेंट केसेस पर आ चुके हैं। तो वी आर लैकिंग इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ना, हम अपडेटेड नहीं रहते उन पर्टिकुलर केस लॉज में। हमें ऐसा लगता है यस, बेयर एक्ट में कमांड होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, बेयर एक्ट में कमांड होनी चाहिए, देयर मस्ट बी सम ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज through the context, through the authoritative books as well, but you have to aware of with those particular case laws as well. चूंकि हमने बेयर एक्ट अच्छे से कमांड कर ली, we know all the keywords, important key terms, yes, we were able to do that. लेकिन क्या हमने ऐसे अपडेटेड केस लॉज को भी कभी रिवाइज करने की कोशिश की? शायद नहीं। तो इस फैक्ट को, इसका खामियाजा हमें अपने इस एग्जाम में देखने को मिला, राइट? सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या क्वेश्चन पेपर बहुत टफ था? तो आई विल से नो, इट वाज नॉट सो टफ। आपको लग रहा होगा क्यों? दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इट वाज अ बैलेंस्ड अप्रोच वाला पेपर, राइट? एक संतुलित वे वाला पेपर था। Yes, it might be difficult in some of the certain questions. It might be difficult to those particular candidates and aspirants who were not aware of regarding these particular questions, who have not the habit of solving these kind of questions. But for the people who were appearing for Delhi Judicial Services, who were appearing for Haryana Judicial Services, who were appearing for UP, Bihar and Uttarakhand, I will say no. क्योंकि किसी भी कंपटीशन का जो एक मेरिट लेवल है या एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेवल है, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? अभी मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं।
what should be the expected cutoff? Because इन सारे इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सुनने के लिए वही होगा कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए. So far as concerned to the level of difficulty, yes, it was in certain questions it was difficult. कुछ particular निश्चित प्रश्नों को लेकर के अगर हम देखें तो एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट का लेवल दिखता है, लेकिन एक बैलेंस्ड अप्रोच अगर आप देखेंगे तो लॉ सेक्शन आपको उसी पोजीशन में दिखेगा. कंप्यूटर, यस, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे या पूछे जाते थे इन इट्स अर्लियर ट्रेंड, वैसे नहीं आए. इंग्लिश एज यूजुअल हमेशा की तरह, और जी के पार्ट कहीं ना कहीं जिसमें मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर के देखें तो यहाँ पर स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा पूछ लिए गए. 8 to 9 से 7 to 9 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिलेटिंग टू द करंट अफेयर्स. So the thing is, whether the paper was tough, no, ये tough आपके लिए हो सकता है who were not aware of regarding those particular train, those particular questions. लेकिन अगर हम इसके थोड़ी सी रीजनिंग देखें, थोड़ी सी रीजनिंग अगर आप इसकी देखें एज टू द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो यू विल फाइंड कि इसका कंपैरिजन आप अर्लियर ईयर्स के दिए हुए कट ऑफ से लगा सकते हैं. मैं उस पर अभी आऊंगा. उससे पहले आप देखें कि एक कंपैरिजन करके देखें कि ओल्ड ट्रेंड और न्यू ट्रेंड में किस प्रकार से क्वेश्चंस के नेचर में, क्वेश्चंस के लेवल ऑफ डिफिकल्टी में एक चेंज आया है. तो अगर आप अर्लियर क्वेश्चन सेम सेक्शन 11 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष आते थे कि प्ली ऑफ रेस जुडिकेटा, ऑप्शन नंबर 1 has to be specifically raised, need not be specifically raised, is for the court to see of its own, neither A nor B but only C. तो कुछ डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप इसमें देख पा रहे हैं कि रेस जुडिकेटा से किस प्रकार के क्वेश्चन अराइज हो सकते थे इन अर्लियर ट्रेंड. अब उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा को जब आप एक एप्लीकेशन वे में देखते हैं, हाउ वुड यू अप्लाई इन अ गिवन फैक्ट्स, एक दिए हुए तथ्यों में आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे सो फार एज कंसर्न टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन इटसेल्फ. सो सी व्हाट हैड बीन आस्क्ड इन 20th March in this recent trend of MP civil justice examination. A is filing against B one suit on 6th Jan 2020 and on the same grounds asking for the relief on 18th Feb 2020. The first suit was filed on 6th Jan, second suit was filed on 18th Feb. On the same grounds, asking for same relief. Suit filed in Feb, that is subsequent suit. It has been decided by the court of competent jurisdiction on merits, and before suit filed in Jan, it could be decided. Examine the validity of a statement. So far as concerned to this question, what is asking? It is asking ki how would you examine the validity of the given statement? Suit filed on 6th Jan 2020 is valid and res judicata will apply on the suit filed in Feb as it was filed later. And the options are: the statement is correct, the statement is incorrect, the principal res judicata has no application to decide the validity of given statement, and validity of a statement depends upon the discretionary power of the court. So if you are not well versed with the comprehensive study of res judicata, only remembering the provision from the Bail Act, only remembering the keywords and key terms from the Bail Act, I think now it will not make any help to you for further examinations. क्योंकि एक लेवल तक तो इन्होंने अपने एग्जामिनेशन को, अपने क्वेश्चन पेपर को सेट कर लिया है. तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आगामी परीक्षाओं में, आगामी एग्जामिनेशंस में, फर्दर एग्जामिनेशंस में ये लेवल अब बढ़ना ही है, इससे कम नहीं होना है. सो जस्ट होल्ड टाइट योर बेल्ट फॉर another examination in next year. दूसरे वर्षों में अपने इसी परीक्षा के लिए आप थोड़ा तन्मयता से, थोड़ा तटस्थता के साथ प्रिपेयर हो, मेरा यह निवेदन है. क्योंकि अभी तक हमारे ट्रेन में सिर्फ हम प्रोविजन, इलस्ट्रेशन और कोई लैंडमार्क जजमेंट है तो उसको भी सिर्फ इतने तक सीमित थे. कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस की हैबिट, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम या तो नहीं करते थे, या हम अवॉइड करते थे, या हम ये कहकर टाल देते थे कि these kind of questions are not relevant for the purpose of Madhya Pradesh Judicial Service Examination. So it cannot be a good thing for now. हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते.
एंड इफ यू हैव डिसाइडेड टू डू, एक स्वप्न आपने जीने का प्रयास किया है, इफ यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ, तो ऐसे स्वप्न को जीवंत बनाने का कार्य सिद्धि भार भी आपके ऊपर है. एंड हाउ वुड यू डू दैट? बाय अ प्लान, बाय अ स्ट्रेटजिक प्लान. एक सही स्ट्रेटजी के साथ, एक सही प्लानिंग के साथ अपने लक्ष्य का संधान करना. राइट? So these are some certain things that I was very much eager to discuss for this particular examination. So as to the comparison, I am showing the thing कि किस प्रकार के क्वेश्चन ओल्ड ट्रेंड में पूछे जा सकते थे और पूछे जा रहे थे, और इस नए ट्रेंड में किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो इसका अंदाजा हमें अभी होना चाहिए, इसकी सीख हमें अभी होनी चाहिए, ताकि अगले युद्ध में, युद्ध के पड़ाव की स्थिति में हम विजेता हों, हम विजित करने की स्थिति में हों. हमारी स्थिति डायलेमा में नहीं होनी चाहिए कि यस अगर इतना आ जाता है तो आई एम इन, अगर इतना आ जाता है तो आई एम आउट. नो नो, या तो हार और या तो पार. तो हारना हमने सीखा नहीं है, पार करना है. तो पार करने से पहले, किसी भी युद्ध से पहले हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमारा एक अच्छा अभ्यास होना चाहिए. तो उस प्रैक्टिस को एडॉप्ट दैट, उसे अपने अनुकूलन में लाएं, उनका अनुसरण करें. एंड डू ऑल द थिंग्स विच आर नेसेसरी टू सक्सीड, नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन बट टू लाइफ एज वेल, जीवन में भी. तो ये निश्चित रूप से, जैसा कि कई सारे बच्चों के साथ, कई सारे कैंडिडेट्स के साथ, एस्पिरेंट के साथ मेरी बातचीत हुई, टीम ने बातचीत की, दे आर अटेंडिंग राइट नाउ एज द कॉल्स एंड मैसेजेस. तो जो कुछ एक डेटा सामने आ रहा है उनको देख करके, एक सर्वे समझ में आ रहा है उनको देख करके, और उन कैंडिडेट्स के ऐसे क्वेश्चंस को देख करके इस सेशन को प्रिपेयर करने का प्रयास किया गया है. सो हैव अ लुक ऑन the thing that you are waiting for, that is expected cutoff. अभी तक मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग डायमेंशंस में कट ऑफ देने की कोशिश की है. तो दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस एंड नन ऑफ माई कंसर्न. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सब व्यक्तियों के, सभी पर्सन्स के, सभी इंस्टीट्यूशंस के अपने अलग अलग जो सर्वेज हैं वो अपने अलग अलग डेटा और रिसोर्सेस पर डिपेंड करते हैं. सो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में 2019 में अनरिजर्व कैटेगरी, well it was 96 post, 118 was the cutoff mark, and for OBC it was 113, है ना, and for SC and for scheduled tribe it was something 82 and it was something 96 around. That was in 2019 year. अब चूंकि रीजनिंग की जब हम बात कर रहे होते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट वर 96 for unreserved category in 2019. Level of difficulty, what was the level of difficulty as to the question paper, उसको डिटरमाइन करना, और जिस प्रकार से एक कट ऑफ की शैली जा रही है उसको डिटरमाइन करना. तो इन सब चीजों को थोड़ा सा फिगर आउट करते हुए अगर हम 2021 मार्च के पेपर को थोड़ा सा फाइंड आउट करें एज पर द कैंडिडेट्स दैट दे आर टेलिंग देयर ओन एग्जैक्ट स्कोर्स, तो उन स्कोर्स के आधार पर, उन सर्वेस के आधार पर, तो आई एम सीइंग कि दिस पर्टिकुलर एक्सपेक्टेड कट ऑफ शुड बी अराउंड द पर्सन हु आर अबव 120 to 125, दे आर सेफ. जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट जिनके अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स एज पर द आंसर की ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, एंड दे आर सिक्योरिंग देयर ओन स्कोर from 120 to 125, above 120 if I am saying in general, सामान्यतः अगर मैं कहूं, so they are in a safe position and they have to prepare for the mains examination without wasting their own time. तो अपने समय को व्यर्थ किए बिना उनको तत्काल मेंस की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्टली प्रिपेयर होना शुरू कर देना चाहिए. बिकॉज apart from COVID, High Court will not provide any specific time. जैसा आपने अभी prelims के दौर में देखा, from 5th of September till now 20th of March,
सो कोविड की परिस्थिति को थोड़ा सा अलग रखते हुए you will find only 45 to 50 days maximum, right? And I think it is quite difficult. ये कुछ समय के लिए काफी कठिन हो जाता है कि ऐसे कम समय में हम लॉ पेपर 1, 2, लैंग्वेज पेपर एंड जजमेंट राइटिंग पेपर, इन चारों पर एक दृष्टि रखते हुए इनकी प्रिपरेशन में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें. सो you have to make your own strategy. How would you provide the exact period of time for those particular subjects, right? उन सभी विषयों के लिए आप अलग अलग विभाजित समय में अपना समय प्रोवाइड करें और उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर होना शुरू कर दें विदाउट वेस्टिंग योर अ सिंगल मिनट, राइट? सो दिस इज अ kind of suggestion to all of you, right? So in this particular analysis of Madhya Pradesh Civil Judge Prelims examination, this will be a part 1, and in which we are going to discuss these particular subjects: Indian Contract Act, Specific Relief Act, Limitation Act, MP Local Laws, Accommodation Control Act and Land Revenue Code, and Negotiable Instrument Act, right? So let's have a look. The question number 33 in your original exam paper, starting from Indian Contract Act. See what is saying. Where both the parties are under mistake as to matter of the fact, the agreement will be what? Enforceable, voidable, not void, void. So far as concerned to this particular question, you can see the question is being asked from section 20 of Indian Contract Act 1872, और section 20 अपने आप में इस fact को clear करती है कि if the both the parties are under mistake of fact, the effect will be void. अकेली एक ऐसी section in the topic of free consent, कब किसी पर्सन की कंसेंट फ्री कही जाएगी? व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake, CUFMM. So what will be effect? इनका प्रभाव क्या कारित होगा अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन्स की जो कंसेंट है, इट इज अफेक्टेड बाय फ्रॉड, इट इज अफेक्टेड बाय coercion, it is affected by undue influence or misrepresentation or mistake. So as far concerned to these particular 4 things, it will be voidable, and where both the parties are under mistake of fact, it will be void, right? So you can have a look under section 20 of Indian Contract Act in your Bear Act. So the answer will be void. I think you people are uh, correct in this point. Yes, very good, thank you. So moving to the next question. The next question is, a guru spiritual advisor induced the chela, his devotee, to gift him the whole of his property to secure benefit to his soul in the next world. The question is asking, A, who is a guru, the spiritual advisor, and he is inducing his chela to gift him the whole of his property. अपने चेले से उसके द्वारा ये कहा जाना कि अगर आपके द्वारा अपनी सारी संपत्ति मुझे गिफ्ट में दे दी जाती है, देन उस नेक्स्ट वर्ल्ड में यू विल सिक्योर द बेनिफिट फॉर योर सोल, अपनी आत्मा की तुष्टि के लिए. सो ऐसी कंडीशन में व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ गिफ्ट? एज यू आर सेइंग द वर्ड इंड्यूस्ड, और इस पर्टिकुलर वर्ड में यू कैन फाइंड आउट कि द कंसेंट बिटवीन द पार्टीज आर नॉट फ्री. यहां पर दोनों ही पक्षकारों की जो सम्मति है वो स्वतंत्र फॉर्म में नहीं है. इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट फ्री, right? Because one party is in position to dominate the will of another, right? So basically it's a decided judgment, decided case, and that is Mannu Singh versus Umadatta Pandey, decided on 1890.
और इस पर्टिकुलर केस के फैक्ट को ही यहां पर ड्रॉप आउट कर लिया गया है, पुट कर दिया गया है, रख दिया गया है, एग्जैक्टली द सेम। और व्हाट हैज बीन हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट, दैट विल बी द इफेक्ट। इस प्रकार के दान का क्या इफेक्ट होगा, इस प्रकार के गिफ्ट का क्या प्रभाव कारित होगा, द सेम थिंग हैज बीन डिसाइडेड इन दी मुन्नू सिंह जजमेंट्स, राइट। तो इस निर्णय के अनुसार भी, और by applying the law that you have read under section 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस से रिलेटेड जो प्रोविजन है उस पर्टिकुलर प्रावधान के अंतर्गत इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट वाइडेबल होगा सेक्शन 19, आपको याद करना चाहिए, 19A याद करना चाहिए, राइट। तो इन पर्टिकुलर प्रोविजंस में फ्री कंसेंट कब इन पर्टिकुलर चीजों से प्रभावित होगी और उनका इफेक्ट क्या होगा। सो फार एज कंसर्न टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, द राइट आंसर विल बी वाइडेबल, नीदर वाइड नॉर वैलिड नॉर इम्पॉसिबल, इट विल बी वाइडेबल, इट विल बी शून्य करणीय। इज दैट राइट? ओके, मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज दैट? क्वेश्चन नंबर 35, finder of lost thing which is commonly the subject of sale may sell it when lawful charges of the finder in respect of the thing find amount to। अब यहां पर आपसे इसकी एक वैल्यू पूछ ली गई है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में वेयर द फाइंडर ऑफ अ लॉस्ट थिंग, एक खोई हुई चीज का फाइंडर विच इज कॉमनली द सब्जेक्ट ऑफ सेल, ऐसी वस्तु जो सब्जेक्ट टू सेल है, ही कैन सेल इट कब, किस परिस्थिति में, किन कंडीशंस में, व्हेन लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ थिंग फाइंड अमाउंट टू, जब इस प्रकार की प्रॉपर्टी को संरक्षित करने में उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू, इस प्रकार की वैल्यू एक्सीड हो, ऐसी कंडीशन में इस प्रॉपर्टी को क्या किया जा सकेगा, सेल किया जा सकेगा। एंड यू कैन फाइंड आउट इट इन अंडर सेक्शन 169, सेक्शन 169, आई थिंक इट इज सबसेक्शन 2, इसको आप एक नजर देख सकते हैं। और उस प्रोविजन में the value that is provided in section is 2/3 of the value, right? So these are basically, if you can see कि ultimate they are asking the questions from the provision itself, है ना। ये सीधे सीधे प्रावधानों से पूछे गए वो कीवर्ड्स हैं, की टर्म्स हैं, या प्रावधानों से पूछे गए ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। So if you were able to see these particular important terminologies during the time of your study, that these things may be relevant, these things are relevant, these things were relevant because they have been asked earlier in any of the examination, whether in the MP state or other states, then you have to cautious about these particular key terms and key things. तब आपको ऐसे keywords और key terms पर थोड़ी सी नजर अपनी बारीक रखनी होगी, right? तो you can find out it under section 169 and the subsection 2. So far as this concerned to this particular question, the answer will be 2/3 of the value. Next, question number 36. A is hiring a carrier of B and the carrier is unsafe though B is not aware of it. B को इस बात की जानकारी नहीं है that the carrier is unsafe. A is taking such carriers and injured, then what will be the consequence? परिणाम क्या होगा? So far as concerned to this particular question, you have to know that the question is based on bailment, उपनिधान की संविदा से सन्निहित ये particular question है। So you have to move on into the topic of bailment starting from 148, how the delivery will be made, 149, then move on 150, क्या effect होगा if the party was aware of it, if the party was not aware of it, right? So you have to see section 150 and the illustration provided under illustration number B. इसने सेम इलस्ट्रेशन पूछ लिया है और ये कोई पहली बार नहीं है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इतना हाईली रेलिवेंट है कि ये क्वेश्चन किसी ना किसी ईयर में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, चाहे वो कोई भी स्टेट जुडिशरी का एग्जाम हो, राइट? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ट्रेंड इज नेसेसरी टू नो। भाई साहब, हमें मालूम होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है किसी भी स्टेट जुडिशरी में जहां कहीं भी आप अपीयर हो रहे हैं। बट यू अगेन हैव टू अवेयर
कि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो हमारी बारीक नजर सबसे पहले उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, उन पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द लॉ में होनी चाहिए विच इज रेलिवेंट, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ द टारगेटेड एग्जाम। रेस्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू पीपल, यू कैंडिडेट, कि ऐसे पोर्शन पर भी हमारी थोड़ी बहुत मालूमात होनी चाहिए, नजर होनी चाहिए कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन कभी भी किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन नहीं भी पूछे गए हैं, लेकिन उसकी एक जनरल इंफॉर्मेशन हमारे नॉलेज में हो, उसका एक जनरल इंफॉर्मेशन एज टू एप्लीकेशन हमारी नॉलेज में हो, राइट? सो सेक्शन 150 illustration number B, and you can find out what is the exact answer of it. So A is injured, when what will be the consequence of it? Yes, B is responsible to A for injury. This will be the correct answer. Next, every agreement and restraint of marriage of any person other than a minor. So this is basically section 26. It is provided under section 26 itself. So far as the concern this particular question, you can see that again they are asking the provision based question. मीन्स अगर हमें अब यहीं पर एक नया फैक्ट या एक रेगुलर फैक्ट जो हमारी नॉलेज में आता है वो यही है कि यहाँ ऐसे कंडीशंस में अब जरूरत पड़ जाती है कि हमें इस प्रकार के प्रोविजंस अपने मेमोरी में, ध्यान में एकाग्रचित्तता के साथ पढ़े जाने चाहिए और हमारी नजर में होना चाहिए, हमें लगभग याद से होने चाहिए। अब आज के सेशन में मैं इन मेमोरी बेस्ड चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए मैं टोटली फोकस करूंगा कि हम सिर्फ इन क्वेश्चंस पर रहें, क्योंकि प्रोविजंस हमारी मेमोरी में रहें, either in the form of essential ingredients or in the form of Barak language or in your own form, आपकी अपनी लैंग्वेज जो भी हो। लेकिन ध्यान में बात यह रहनी चाहिए कि ऐसी लैंग्वेज, ऐसी भाषा कानून की भाषा होनी चाहिए, विधि की भाषा होनी चाहिए। It must be language of the law, right? Because you are a law student, you are going to be a lawyer. आप एक अच्छे अधिवक्ता होने जा रहे हैं, अभिभाषक होने जा रहे हैं, राइट? आप एक अच्छे न्यायाधीश होने जा रहे हैं, तो आपकी भाषा भी उस उच्चतम गुणवत्ता तक की तो होनी चाहिए, राइट? और ये आपकी आंसर राइटिंग में भी झलकनी चाहिए। दैट इज रिक्वायर्ड, ये एक आवश्यकता है। सो एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर, तो यू कैन सी इट इज एग्जैक्टली द सेक्शन 26, और सेक्शन 26 ही इस फैक्ट को डिक्लेयर करती है कि सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट विल बी void, not avoidable, ना illegal और ना valid, right? So except means other than, minor, all the agreement restraining the marriage of any person will be void. That is provided under section 26. So basically it's one of the kind of the topic of void agreements. कब कोई करार शून्य होंगे, and that is provided from section 24 to 30 itself. सेक्शन 56 को भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर की बात है कि 56 को भी वही होना चाहिए था, लेकिन वो कुछ कारणों की वजह से सेपरेटली रखा गया है। सो एज फार कंसर्न टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस प्रश्न के अवधार्य हेतु हमें ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि इट इज ऑलरेडी provision based on the question based on provision that is provided under section 26, and the effect that is already provided under 26 is void, shunya. Next important question. Yes, this is very much relevant and important to know. If a promisee accepts the anticipatory breach by a promiser, अगर promisee के द्वारा किसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट में इन विच प्रोमिसर हैड मेड एनी एंटीसिपेटरी ब्रीच, ऐसी कंडीशन में व्हाट विल बी द एग्जैक्ट थिंग दैट मस्ट बी हैपन, या इस प्रकार की कंडीशन में जब प्रोमिसर के द्वारा किए गए एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट में इस प्रकार के एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर ले, तो ऐसी कंडीशन में व्हाट काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव विल बी अवेलेबल फॉर द प्रोमिसी पर्सन. So first option, that is saying promisee need not perform his part of the contract but not entitled to claim damages from promiser. तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि it is saying that the promisee will not be entitled to claim damages from promiser, और ऐसा संभव नहीं है. So आपको next particular point में मूव करना चाहिए, that is the promisee need not perform his part of contract but entitled to claim
अब ये भी प्रासति नहीं हो सकती। तो ऐसी कंडीशन में यू हैव टू चूज द एप्रोप्रिएट आंसर एंड द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेइंग द promisees need not perform his part of the contract but entitled to claim damages from promisee without waiting till the date of performance, right? So this will be the correct answer कि ऐसी कंडीशन में promisee need not perform his part of the contract but still he is entitled to claim damages from promissory without waiting till the date of performance. तो promisee के पास ये ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा कि विदाउट वेटिंग टिल द ड्यू परफॉर्मेंस डेट, टिल द appointed date of performance, he can immediately file a civil suit, right, for such breach of contract, as well as he can also avail of certain damages or compensation which he has incurred by such kind of breach. तो ऐसी कंडीशन में promisee person के पास ये राइट हमेशा उपलब्ध रहेगा, right, that without waiting for till the date of performance he can claim, right? So this is the thing that is used to came from a decided judgment, and you can find out the landmark judgment, the important judgment in this particular section 39, that is Hochester versus De La Tour 1853. So Hochester versus De La Tour is the case जिसमें आप इस पर्टिकुलर जजमेंट के तहत what has been held under this particular landmark judgment, that is already provided under option number C, and that is the relevant answer of this particular question, right? Okay, so this is the thing that is not provided in the provision. प्रावधान में नहीं बल्कि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली थ्रू अथॉरिटेटिव बुक्स थोड़ा सा अलग तरीके से मेहनत करके या अलग तरीके से देख करके ही मालूम पड़ सकती है। इसकी मालूमात डायरेक्टली आपको सेक्शन से नहीं हो सकती, राइट? व्हाट इज सेक्शन 39? इसके बारे में कभी अपने अगले सेशन में बात करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन। नेक्स्ट, a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of another person is called. अब इस प्रासति में they have put down the exact provision, the exact definition of section 124, that is contract of indemnity. क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा के तहत क्या चीजें हो सकती हैं, that is already provided under section 124, and they have given exactly section 124 that what is contract of indemnity. They are providing the definition and you have to choose out किस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का ये पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डेफिनिटी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंतर्गत, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, श्योरिटी है या नन। तो ऐसी कंडीशन में यू हैव टू रिमेंबर द एग्जैक्ट डेफिनेशन। अब हमें यहाँ पर अगर परिभाषिक शब्दावलियां याद नहीं रही या वो एग्जैक्ट प्रोविजंस हमारे मन मस्तिष्क में उद्भूत ना हो पाए एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो ऐसी कंडीशन में समवेयर यू वर नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू वर नॉट बी एबल टू क्वालिफाई दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। उन पर्टिकुलर प्रश्नों को क्वालिफाई करने के लिए या उन्हें सही साबित करने के लिए या उन्हें सही टिक करने के लिए आपके पास ऐसे प्रावधानों की एक अच्छी लिस्ट होनी चाहिए। ऐसे प्रावधानों के इसेंशियल इंग्रेडिएंट, ऐसे प्रोविजंस के इसेंशियल इंग्रेडिएंट हमारे मेमोरी में होने चाहिए। सो सेक्शन 124 से बिलोंग करता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, और जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को डिफाइन किया गया है। सो यू कैन हैव अ लुक in your own Bayer Act that it is the exact provision of 124. तो जो भी प्रोविजंस आप इंपॉर्टेंटली देख पा रहे हैं इन प्रोविजंस में और ऐसे दूसरे प्रोविजंस में, किसी दूसरे स्टैट्यूट और लॉ में, आपको प्रिपरेशन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि इस प्रकार के प्रोविजंस को हम दोनों ही कैटेगरी में देखें। मीन्स व्हाट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द मार्जिनल हेड एज वेल एज व्हाट हैज बीन प्रोवाइडेड इन द प्रोविजन। उस प्रावधान में, प्रावधान के अंदर क्या प्रोवाइड किया गया है, उस प्रोविजन के अंदर क्या प्रोवाइड किया गया है, और वो पर्टिकुलर प्रोविजन किससे बिलोंग करता है, राइट? और उसमें अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड की टर्म मिल पा रहा है एज टू द डेट, एज टू द ईयर, एज टू द टाइम, एज टू द अथॉरिटी, देन यू हैव टू मेंशन दोस पर्टिकुलर थिंग्स इमीडिएटली इन योर बेयर एक्ट। यस, ये बातें हो सकती हैं जो आपकी काफी मददगार साबित हो सकती हैं, क्योंकि ये वो फैक्ट्स हो सकते हैं जहां पर से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जिस प्रकार से आपने 169 सबसेक्शन 2 में देखा एज टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो वो कहीं आपको अलग से दिग्दर्शित होना चाहिए whenever you read your own Bayer Act. Okay, so moving to the next question, question number 40.
So A promises to paint a picture for B up to December 31. 31 दिसंबर तक A is promising to paint a picture for Mr. B and accepts an advance money of 1000 rupees. After making of the contract, A's hand are chopped off. A के हाथ कट गए in an accident on December 25 before performance date of December 31st. B is entitled to refund of rupees 1000, yes, from A under which one of the following section. So basically, if you are aware of regarding the provisions of impossibility that is provided under section 56, the initial impossibility and the subsequent impossibility. Initial impossibility provided under section 56 para 1, subsequent impossibility that is provided under section 56 para 2. Right? And you have to remember कि अगर किसी पार्टीज के द्वारा, अब यहां पर दो चीजें अप्लाई हो रही हैं. नंबर वन, जिस पर्टिकुलर एक्ट को परफॉर्म करने के लिए एग्रीमेंट हो रहा है बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द पर्सनल स्किल, पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टीज. ऐसे पक्षकार के व्यक्तिगत कौशल, व्यक्तिगत अधिक्षमता पर आधारित एक एग्रीमेंट है, एक करार है. और ऐसी कंडीशन में ओनली दैट पर्टिकुलर पार्टी कैन परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द प्रॉमिस. राइट? एंड नंबर टू, in case of the impossibility arising subsequently or arising initially, the effect will be void as per section 56. Right? So here the impossibility is arising subsequently. Right? So the effect will be void, number one. Number two, section 65 is talking about कि अगर कोई particular agreement that becomes void, if it is void or it becomes void, ऐसी कंडीशन में पार्टीज ने अगर एग्रीमेंट के तहत कुछ ना कुछ प्रॉफिट या कुछ ना कुछ बेनिफिट गेन किया है तो ऐसे प्रॉफिट्स को उन्हें रेस्टिट्यूट करना होगा, प्रत्यास्थापित करना होगा. एंड द अदर पार्टी विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर सच प्रॉफिट्स फ्रॉम अनदर पार्टी. ऐसे दूसरे पक्षकार से इस प्रकार के उद्भूत होने वाले लाभों को रिकवर करने का राइट रखेगा. राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर 65 that is applying on void agreements, contracts. 73 that is relating to breach of contract. 64 that is relating to the voidable agreements and compensation providing for voidable agreements, or 75 that is also related from breach of contract topic. Right? सो एलिमिनेट करने के प्रोसेस में भी आप अगर देखें तो इजीली 73 और 75 को आप रिमूव कर सकते हैं. 64 और 65 में आपको ये बात, ये फैक्ट आपकी मेमोरी में होना चाहिए दैट 64 इज अप्लाइंग ऑन वाइडेबल एग्रीमेंट्स एंड 65 इज अप्लाइंग ऑन वाइड एग्रीमेंट्स, वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स. राइट? सो इन दिस काइंड ऑफ कैटेगरी the other person will be entitled to recover such amount from another party through section 65. I think that you are clear on these particular points. मैं आशा करता हूं कि आप इन सब पर्टिकुलर पॉइंट्स में अब स्पष्ट हैं. सो मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन दैट इज सेक्शन 41 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. थोड़ा सा स्पीडली रन करते हैं. राइट? ताकि हम आज के सेशन में इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को टाइमली डील कर लें. राइट? Specific Relief Act say the first question, when due to fraud played by the parties a contract in writing does not express its real intention, then appropriate remedy would be a suit for what? A specific performance, declaration, restitution, perpetual. So far concern to this particular question, आपको ध्यान होना चाहिए कि 2013 में शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. राइट? और जब बात आती है as to the appropriate remedy, and the question is already saying that due to fraud played by the parties, a contract in writing does not express its real intention. So when the parties is not showing the real intention, document is not showing the real intention to the parties, ऐसी कंडीशन में रेमेडी would be rectification of instrument that is provided under section
26 और 26 की लैंग्वेज से आप इस फैक्ट को और ज़्यादा स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ये रखा नहीं जाएगा। डिक्लेरेशन की कंडीशन में उनके ग्राउंड्स को ये फॉलो नहीं कर रहा है, परपेचुअल इंजंक्शन के तौर पर इसे हम देख नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 26, तो 26 की लैंग्वेज को, उसकी भाषा को जब आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे, तो यू विल फाउंड द ग्राउंड्स फॉर रेक्टिफिकेशन, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर हूबहू क्लियर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये वो प्लेस है जहां पर जब हम ये बात कर रहे थे कि विधिज्ञ मॉक टेस्ट सिविल जज एग्जामिनेशन के लिए which has been conducted a day before the exact original examination of Madhya Pradesh Civil Judge Examination 20th March 2021, उन दोनों ही पेपर्स के इन पर्टिकुलर क्वेश्चन को सेक्शन 41 और विधिज्ञ मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 86, इन दोनों ही क्वेश्चंस का जो एक मैच है वो लगभग एक जैसा ही था, और only the language was different but the question was from the same provision, right? So this was a big success for Vidhigyans, for the Vidhigya team. Next, specific performance of contract cannot be enforced in favor of a person who has obtained substituted performance of contract under section 20. तो सेक्शन 20 अपने आप में इस फैक्ट को क्लियर करता है कि if the parties are able to perform their own parts through substituted performance, means through the third party, through their own agency, तो ऐसी कंडीशन में पार्टीज के द्वारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए किसी भी प्रकार की रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि एक बार परफॉर्मेंस होने के बाद अब दोबारा किसी भी चीज को परफॉर्म कराने की जरूरत नहीं समझी जाती। तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 20 दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन provided under the Specific Relief Act, that is substituted performance of contract. So specific performance of contract cannot be enforced in favor of a person who has obtained substituted performance, as you can find from the language of the section, language of the provision. Please have a look in your Bear Act. You can find out that the statement is correct. तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, एक बार प्रवर्तन हो गया, एक बार इन्फोर्स्ड हो गई तो फिर राइट। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन फेवर ऑफ पर्सन जिसने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस के तौर पर इस प्रकार के प्रॉमिस को परफॉर्म करा लिया है थ्रू द थर्ड पार्टी और थ्रू हिज ओन एजेंसी, राइट। सो द एग्जैक्ट आंसर विल बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड अगेन from the same section, the Vidhigya mock test series and the exact question asked in the Madhya Pradesh Judicial Services Examination, both the questions were from the same provision, and I think some of the options are different, but you can see the exact questions from both the things, the original question paper as well as the Vidhigya mock test, right? So this was again a good thing. Moving to the next, section 30, that is laying down the court on adjudging the rescission of a contract may require the party to whom such relief is granted. तो सेक्शन 30 में आपको मूव करना चाहिए इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 30 में ऑप्शन नंबर ए दैट इज टॉकिंग अबाउट टू रिस्टोर सो फार एज मे बी एनी बेनिफिट विच ही मे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द अदर पार्टी, and option number B that is talking about to make any compensation to him with justice may require. This is the provision that is based on the equity, justice and good conscience, जो साम्य न्याय के आधार पर बेस कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को that is based on equity, option number A and option number B both are the exact statement provided under section 30. So for this particular question both the statements are right. दोनों ही कथन सत्य हैं, सही हैं। तो जिन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स ने इन ऑप्शन नंबर सी को चूज कर रखा है दे आर राइट, क्योंकि अब आपको ध्यान में इसी फैक्ट को रखना है कि इस बार के क्वेश्चन पेपर में जिस प्रकार से ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस काफी मात्रा में पूछे गए, उनकी संख्या काफी अधिक थी। व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज इनकरेक्ट, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज फॉल्स, या गिवन सर्कमस्टांसेस में, गिवन दिए हुए फैक्ट्स में क्या एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगा,
या फिर हाँ, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी दशा में हमें ऐसे प्रोविजंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना चाहिए भाई। सिर्फ प्रोविजन हमारी मेमोरी में हो, हमें याद हो, की टर्म्स याद हो, कीवर्ड्स याद हो, सिर्फ ये हमें लाभकारित करने वाला कभी भी साबित नहीं हो सकता। इज दैट राइट? सो जब भी किसी पर्टिकुलर प्रोविजंस को आप रीड कर रहे हैं, जस्ट हैव अ मार्कर इन योर हैंड, हाँ, और उन पर्टिकुलर प्रोविजंस को आप जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और की टर्म्स हैं उनको अंडरलाइन करें और उनको बहुत बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखें। ये बहुत रिलीजियसली देखे जाने वाला टॉपिक होना चाहिए, चाहे जिस भी टॉपिक को आप डील कर रहे हो किसी पर्टिकुलर लॉ सब्जेक्ट्स में। और यकीन रखिए कि किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, उस पर सफलता प्राप्त करने के लिए, ये किसी एक दिन का कोई चमत्कार नहीं हो सकता। नो, ये एक दिन की कोई सिद्धि नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई द mentors, the teachers are used to talk about the consistency. That's why they are talking about the patience. That's why they are talking about the hard work. तो कठिन मेहनत, धैर्य और कंसिस्टेंसी, निरंतरता, ये तीन इसके मूल मंत्र हैं। तो कंसिस्टेंसी मीन्स हर एक दिन हम अपने ज्ञान का घड़ा थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन हर रोज बूंद बूंद कर भरें। दैट आई ऑलवेज यूज टू टॉक विद माई ओन स्टूडेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने विद्यार्थियों के साथ ऐसी संवाद में बैठना और बातें करना। एंड आई ऑलवेज यूज टू से कि सागर भी एक रात्रि में सागर नहीं बना है। कई सारी नदियां, कई सारे छोटी छोटी नदियां बूंद बूंद कर सागर बनी है। तो इस बूंद बूंद के ज्ञान से आप परिपक्व होंगे, इस बूंद बूंद के ज्ञान से आप सफलता के उस राह तक पहुंचेंगे। तो मेरी इल्तजा, मेरा निवेदन हमेशा की तरह वही है कि थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन अपने इस ज्ञान का संवर्धन करते रहें। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि वो एक दिन अवश्य आएगा जिस दिन यू विल बी फुल ऑफ योर कॉन्फिडेंस। आप अपने आत्मविश्वास से जागृत होंगे, आत्मविश्वास से भरे हुए होंगे और अपनी सफलता को साधने के लिए परिपक्व होंगे। राइट? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए while going abroad leaves his furniture under the care of his friend. ए जो कि विदेश जा रहा है, उसने अपने कुछ फर्नीचर्स को बी के केयर में रख दिया है। एंड बी प्लेसेस द फर्नीचर टू मिस्टर सी। बी ने उन फर्नीचर्स को सी को गिरवी रख दिया, प्लेस कर दिया। In a suit filed by A under section 8 of a specific relief act, they are providing the exact provision as well. अब इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या प्रोवाइड किया गया है, then this particular thing must be in your knowledge. ये आपके ज्ञान में होना चाहिए। What is saying that? Person who is claiming for the movable property not being an owner, who is retaining such kind of movable property not being an owner. इस प्रकार की संपत्ति को ऐसे पक्षकार के द्वारा, ऐसी पार्टी के द्वारा रिटेन किए रहना जो उसे ओनर को भी नहीं रख रहा है। सो ही हैव टू रिटर्न सच काइंड ऑफ थिंग टू द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड इमीडिएटली। राइट? दिस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 8। सो हैव अ लुक ऑन सेक्शन 8। और जैसे ही आप सेक्शन 8 की उन लैंग्वेज को देखते हैं, अब उन लैंग्वेज को आप इस गिवन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर अप्लाई करिए एंड यू विल गेट योर आंसर। राइट? और आंसर क्या होगा? सी में बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली टू डिलीवर द फर्नीचर टू ए। अब यहां पर दो बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी बहुत रेलिवेंटली पूछा जाता है कि काफी प्रासंगिक है कि सेक्शन 8, सॉरी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इट इज एप्लीकेबल इन मूवेबल properties or immovable properties. So you have to know that it is applicable for both the kind of nature of the properties, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो और चाहे मूल प्रॉपर्टी हो। सेक्शन 7 and 8 बोथ आर रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी। चल संपत्ति, जंगम संपत्ति से रिलेटेड प्रोविजंस को लेकर के रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोविजन यहां पर स्पेसिफाई किए हुए हैं, विनिर्दिष्ट किए हुए हैं। राइट? सेक्शन 5 and 6 they are related to immovable property, recovery of property relating to immovable property.
राइट। अचल संपत्ति से संबंधित संपत्तियों को रिकवर करने के लिए आप 5 and 6 का यूज, 5 and 6 का एक्सरसाइज, और 7 to 8 आपको मूल प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोविजन देखने को मिलेंगे। इज दैट क्लियर? So read the provision immediately and apply the law that you have read in section 8 in this given illustration. You will get the exact answer why I'm saying that. Next, which of the following infrastructure project is not mentioned in schedule to the specific relief act? अब यहां पर एक फैक्ट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, कि हम हमेशा सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, मैं क्यों बार बार इसका नाम ले रहा हूं, मैं ये बात दिग्दर्शित करना चाहता हूं। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के पीछे पड़े रहते हैं, उनको देख लिया, समझ लिया, क्लियर हो गया, यस आई हैव डन दैट। लेकिन कई बार हम शेड्यूल्स को नजरअंदाज करते हैं, ऐसा ही है, हम शेड्यूल्स को नजरअंदाज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है, जो इस बार कईयों को भुगतना पड़ा होगा, ऐसा मेरा मानना है, और हुआ भी है, सिवाय तुक्के में लगाए हुए क्वेश्चंस को छोड़कर। तो शेड्यूल को नजरअंदाज नहीं करना है, ये पहला गुण आपके अंदर, पहला गुणधर्म आपके अंदर आत्मार्पित हो जाना चाहिए। ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि विधायिका, लेजिस्लेचर कभी भी अपने शब्दों को बेकार में खर्च नहीं करती, राइट? तो कानून में जो कुछ भी शब्द अंतर्वलित हैं वो आपके काम के हैं। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में द शेड्यूल दैट हैज बीन अपेंडेड थ्रू द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, उस शेड्यूल में दिए हुए कैटेगरीज को कम से कम 10 बार रीड कीजिए, बस रीड कीजिए और समझिए कि इस प्रकार के क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट इज ओरिजिनल टर्म, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेटेड थ्रू द अमेंडमेंट ऑफ 2018 इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है, ये आपको उधर सब्सटेंटिव प्रोविजन में भी काफी कुछ देखने को मिलेगा कि कोई भी इंजंक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर है तो उसे प्रोवाइड नहीं किया जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी सूट अगर फाइल किया गया तो उसमें इंजंक्शन नहीं मिलेगा, प्रोहिबिट किया गया है। इस तरह के मैटर को सुनने के लिए एक स्पेसिफाइड कोर्ट स्टैब्लिश की जाएगी, प्रोविजन ने अपने आप में स्पेसिफाई किया है। तो शेड्यूल में भी इस बात को क्लियर किया गया है कि व्हाट कुड बी द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो उन्होंने कुछ कैटेगरीज अलग अलग डिवाइड कर दी पार्ट ए बी सी डी में, राइट? तो एज फॉर द गिवन ऑप्शंस, 5-star होटल लोकेटेड आउटसाइड सिटी, 3-star होटल लोकेटेड आउटसाइड सिटी, 5-star होटल लोकेटेड विद इन सिटी, इसको आप डबल अंडरलाइन करें, एंड रोपवेज। सो रोपवेज इज प्रोवाइडेड इन द शेड्यूल, 3-star होटल outside city provided, or outside city 5-star hotel others provided, but 5-star hotel located within city it is not provided, right? और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? which of the following infrastructure is not mentioned in schedule? अनुसूची में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मेंशन नहीं किया गया है? अब आप बारीकियां देखिए कि क्वेश्चन फ्रेमर्स, ये क्वेश्चन पेपर फ्रेमर्स या एग्जामिनर्स किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए अपने आप को कटिबद्ध किए हुए हैं। तो हमें भी अपनी प्रिपरेशन के लेवल को किस स्टेज तक बढ़ाना चाहिए, इसमें कुछ समृद्धि लानी चाहिए, राइट? सो द एग्जैक्ट आंसर विल बी 5-star होटल। अब एक फैक्ट मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देना चाहता हूं, दैट इज द वर्ड नॉट, the word other than, the word incorrect, the word false. These are particular words, देखने में बहुत सिंपल हैं लेकिन इनका मीनिंग बहुत विचित्र है, क्योंकि जब कभी हम एग्जामिनेशन के दौर में हैं, इन दैट पर्टिकुलर 2 hour 150 क्वेश्चंस 120 मिनट्स, उस 2 घंटे में, उन 2 घंटे के समयों में स्थिति कुछ विचित्र सी होती है। कई बार हम जानते हुए क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, ऐसा होता है, नॉर्मल है, हम सभी करते हैं, ये किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट की प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सजेशन सिर्फ इतना है कि जब कभी भी आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जब कभी भी आप कोई प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, या जब कभी आप उस द डे में ओरिजिनल एग्जामिनेशन को अटेंड कर रहे हैं,
तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे दिए हुए क्वेश्चंस में जहां कहीं भी आपको द वर्ड नॉट, द वर्ड अदर देन, द वर्ड एक्सेप्ट, द वर्ड इनकरेक्ट, फॉल्स, इस तरह के कोई भी वर्ड्स मिले, तो आपके ये दिव्य चक्षु और आपकी श्रवण गोचरता दोनों ही सजग हो जाने चाहिए, दोनों ही उठ खड़े होना चाहिए। यहां पर आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए कि आगे के दिए हुए ऑप्शंस में हमें क्या एक्सप्रेस करना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, उस पर्टिकुलर दिए हुए ऑप्शंस में क्या नहीं प्रोवाइड है ये बताना है, राइट। सो ये एक ऐसा पड़ाव है जहां पर आपको सावधानी की स्थिति में होना चाहिए। दिस इज माय स्पेशल सजेशंस टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब यहां पर वर्ड फॉल्स आ रहा है, you have to be cautious. An injunction cannot be granted to prevent the breach of a contract, the performance of which would not be specifically enforced. Number one. Number two, injunction cannot be granted to prevent on ground of nuisance an act of which it is not reasonably clear that it will be a nuisance. Number three, an injunction cannot be granted to prevent a continuing breach in which plaintiff has acquiesced. अब important fact ये है that ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका सेक्शन 41 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से बिलोंग कर रहा है, जिसमें क्लॉज एच ए करके शायद एक नया क्लॉज भी ऐड हो चुका है, दैट इज बाय वे ऑफ अमेंडमेंट ऑफ 2018, राइट। एंड जितने भी क्लॉजेस सेक्शन 41 में प्रोवाइड किए गए हैं, कब इंजंक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, व्हेन इट विल बी रिजेक्टेड, राइट। सो दे आर प्रोवाइडिंग सर्टेन ग्राउंड्स, और ये तीनों ग्राउंड्स आपको सेक्शन 41 में दर्शित मिलेंगे। सो नन ऑफ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, ऑल आर ट्रू। और ऐसा हम कब कर पाएंगे? ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब इस प्रकार के सारे ग्राउंड्स हमारे नॉलेज में होंगे, हमारी मेमोरी में होंगे, राइट। सो इस तरह के क्वेश्चन में आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखिए, आप कठिनता का चरम देखिए। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट शो हो रहा है नहीं। अगर आपको प्रोविजन आपके मेमोरी में बेस्ड है, मेमोरी में बसा हुआ है, तो अप्लाई करिए ना। यू विल फाउंड कि क्वेश्चन इज वेरी मच इजी। ये हमें डिफिकल्ट इसीलिए लग रहा है क्योंकि हमें प्रोविजन ही याद नहीं है, हमें एप्लीकेशन ही नहीं आ रहा है, राइट। या चीजों को हमने एकाग्रचित्तता और कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखा नहीं। सो माय सजेशन वुड बी read the provisions very carefully in very concentration manner. Okay, so now we are moving to another subject, that is Limitation Act. Starting from question number 1, that is negotiations for settlement taking place between a claimant and a person against whom claim is made. Plaintiff और defendant के बीच अगर सेटलमेंट की कुछ नेगोशिएशन हुई और नेगोशिएशन के दौरान ही लिमिटेशन पीरियड एक्सीड कर जाए, तो whether the defendant would be able to bar to raise such kind of limitation period or not, this is the question. So number one option is, it is barring the defendant from pleading a statute of limitation where the negotiation have led to delay in bringing the action by the claimant. Does not debar the defendant from pleading a statute limitation even though the negotiations have led to delay in bringing the action by the claimant. May bar the defendant from pleading a statute, shall bar the defendant from pleading. So for a consent to this particular question, you have to remember this is a conceptual question. ये एक अवधारणात्मक प्रश्न है। अब यहां पर यह फैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि it is never be a bar to the plaintiff, either to the plaintiff or to the defendant. ना तो वादी को और ना ही प्रतिवादी को, दोनों को ही यहां पर निर्बंधित नहीं किया गया है। Both the parties will have right to raise the question of limitation. परिसीमा का प्रश्न जो भी पक्षकार चाहे वो रेज कर सकता है, right? So the defendant will have right to raise certain questions regarding limitation period. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब ये प्रिंसिपल हमें मालूम होगा तो हम सही आंसर को इंडिकेट कर सकेंगे। So defendant person, so it is never a bar to the defendant from pleading a statute of limitation even though the negotiations have led to delay in bringing the action by the claimant. क्लेमेंट के द्वारा देरी कर दिए जाने की वजह से भी
और देरी का कारण negotiation by the negotiation for settlement. So this cannot be a ground to debar the defendant from raising the limitation period, right? I think now you people are clear on this point. Now, another provision, that is provision number 21, section 21. A suit is deemed to have been instituted in case of new plaintiff impleaded or added. Before going to the options provided in this particular question, I want to remember all of you that this particular question is very, very much relevant and important, and it has been asked many a times in many of the judiciary exam. चाहे वो MP का रहा हो, बिहार का रहा हो, यूपी रहा हो, उत्तराखंड रहा हो, छत्तीसगढ़ रहा हो, राजस्थान रहा हो. सेक्शन 21 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इज वेरी वेरी मच रेलेवेंट. अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज इस सेक्शन को डबल स्टार मार करके अपने बैरक में रखें. और सेक्शन 21 की जो लैंग्वेज है, द मेन पार्ट, द सब्सिक्वेंट पार्ट, प्रोविजो पार्ट, ये तीनों पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इन तीनों ही पार्ट, दोनों ही पार्ट्स में कई बार हमें कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है, भ्रम की स्थिति आ जाती है. सो यू हैव टू रिमेंबर द जनरल रूल एज टू इम्प्लीडिंग द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, राइट? किस पर्टिकुलर डेट से उन्हें इम्प्लीड किया हुआ माना जाएगा, और दूसरा किस पर्टिकुलर डेट से इन्हें, क्या हम प्रीवियस डेट से भी इन्हें हम इम्प्लीड मान सकते हैं या नहीं, ऐसी एक कंडीशन भी आपको उसमें दिग्दर्शित होगी. सो ऑप्शंस आर ऑन द डेट ऑन विच द न्यू प्लेंटिफ इज इम्प्लीडेड, ऑन द डेट ऑन विच द सूट वाज इनिशियली इंस्टीट्यूटेड, ऑन द डेट ऑन विच एप्लीकेशन, कई बार ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर ऑप्शन हमें कंफ्यूज करता है, एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीडिंग अ न्यू प्लेंटिफ इज मेड. फोर्थ इज नन. सो when you read section 21, you will found directly in the provision itself that the new plaintiff impleaded or added from the date on which the new plaintiff is impleaded. अगर आज की डेट से किसी नए वादी, नए प्लेंटिफ को इम्प्लीड किया गया है, ऐड किया गया है, तो आज की डेट से ही उसे जुड़ा हुआ माना जाएगा, राइट? सो दिस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 21 एंड आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट answer. Next question, that is section 14. The jurisdiction to grant exemption under section 14 Limitation Act 1963 is given exclusively to court of first instance, high court, supreme court, only civil court. तो इस particular question में बहुत general question है, that is to as to jurisdiction to grant exemption under 14, it is given exclusively to court of first instance. That is the राइट आंसर, क्योंकि रेस्ट ऑफ द कोर्ट्स को ही तो इसे परफॉर्म करना है, इधर इन द ट्रायल स्टेज और इन द अपीलेबल स्टेज और इन द रिविजनल स्टेज, राइट? सो फार एज कंसर्न टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आंसर विल बी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. यू कैन हैव अ लुक अंडर सेक्शन 14. सेक्शन 14 से ही आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज एज टू एप्लीकेशन ऑफ द सेक्शन 14. बहुत सीधा सा प्रश्न है. एक सूट फाइल किया जाता है बाय द प्लेंटिफ. डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट में ऑब्जेक्शन उठाया दैट नॉट इम्प्लीडमेंट ऑफ नेसेसरी पार्टी, एंड डिस्पाइट सच ऑब्जेक्शन द प्लेंटिफ कंटिन्यूड द सूट एंड सूट फाइनली डिक्रीड. फर्स्ट appellate stage, plaintiff withdraws the suit with liberty to file a fresh one on the same cause of action. Subsequently filed a fresh suit the period spent by the plaintiff in the earlier suit under section 14 limitation act. चूंकि दिए हुए फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से आप इस फैक्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं कि इफ द पार्टी, द डिफेंडेंट पार्टी, हैव ऑब्जेक्टेड इन देयर ओन रिटन स्टेटमेंट, राइट, दैट द नेसेसरी पार्टी शुड बी इम्प्लीटेड. डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट, प्लेंटिफ इस सूट को कंटिन्यू रखता है. तो ऐसी कंडीशन में क्या प्लेंटिफ डिलिजेंटली, क्या प्लेंटिफ गुड फेथ में इस प्रकार के सूट को कंटिन्यू कर रहा था? नहीं कर रहा था. इसलिए इस प्रकार के सूट में पीरियड ऑफ लिमिटेशन दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 14 की एक पक्षकार जो गुड फेथ में इस प्रकार के सूट को कंटिन्यू कर रहा हो किसी अदर फोरम में, तो उसे सेक्शन 14 का लाभ दिया जाना चाहिए, प्रॉफिट दिया जाना चाहिए, राइट? तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 14 इस दिए हुए गिवन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस में अप्लाई नहीं करती. सो आंसर वुड बी दैट द पार्टी, plaintiff person will not be liable to be excluded as the plaintiff cannot be said to be prosecuting earlier suit with due diligence and good faith. This is the real and basic logic behind section 14, and that will be applicable in this particular given facts. Okay, next. So now we are moving towards local laws of the Madhya Pradesh Accommodation Control Act.
and Madhya Pradesh Land Revenue Code. First of all, it is MP Accommodation Control Act. Question number 1, that is 51, that is, if a tenant makes deposit or payment as provided by section 13(1) or 2, no decree order shall be made by court for the recovery of possession of accommodation on ground of. So as you are aware of, you can see the Bear Act, you can see the provision provided under section 13(1), that is, it is providing a ground that is a ground of eviction provided under 12(1)(a, that is the right answer. 13(1) में जब आप उस प्रोविजन को रीड करेंगे, you will found कि इस प्रकार के टेनेंट पार्टी के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, एरियर ऑफ रेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, that is 12(1)(a, and the prescribed period is within 2 months, right? So section 12(1)(a, that is the specific ground provided under section 13. Next question, where a landlord has acquired any accommodation by transfer, no suit for eviction under section 12(1)(e or f shall be maintainable till period is over. This is also a very important and relevant question, and this particular question has been asked many a times. कई बार पूछा जा चुका है, right? So इस particular question को अगर आप देखेंगे तो आपको अवेयर होना चाहिए. सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 is talking about this. और अगर कोई भी लैंडलॉर्ड जिससे कोई भी अकोमोडेशन ट्रांसफर के थ्रू एक्वायर किया जा रहा है या मिल रहा है, ऐसी कंडीशन में कोई भी इविक्शन शूट 1 साल के पहले मेंटेनेबल नहीं होगा, till the 1 year period is over. Have a look under section 12 subsection 4. Next, which of the following statement is correct? Married daughter is a family member. Section 2(e), sublease is not included in lease accommodation. It is provided under 2(d), right? Next, any land which is not used for agriculture purpose is covered under accommodation. और आपको सही स्टेटमेंट बताना है, गार्डन इज नॉट एकोमोडेशन. तो ऑप्शन नंबर डी, गार्डन इज एकोमोडेशन. ऑप्शन नंबर बी, लीज इंक्लूड सब लीज. ऑप्शन नंबर ए, मैरिड डॉटर इज नॉट फैमिली मेंबर. थोड़ा अपोजिट चलना होगा. और ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राइट ऑप्शन. एनी लैंड विच इज नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज इज कवर्ड अंडर एकोमोडेशन. और आपको बताना क्या है, जैसा कि मैंने कहा, जहां पर आपको इस तरह के वर्ड मिले सजग हो जाओ. करेक्ट, ठीक है. सो दिस इज प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर प्रोविजंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, पहले ही मार्क कर दो. सो ओपन द बेयर एक्ट एंड सी सेक्शन 12. यू विल फाउंड, आपको मिलेगा कि सेक्शन 12 की वर्डिंग्स किस पर्टिकुलर वर्ड से नॉन ऑब्स्टेंडिंग क्लॉज से इनिशिएट हो रही है. नॉन ऑब्स्टेंडिंग क्लॉज से इनिशिएट हो रही है मींस नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, राइट? और आपको बताना क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट. तो इसमें आप एक नजर देख लें कि सेक्शन 14 को अलाउ कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी. 23J मेंशन कर रहा है इन लैंडलॉर्ड्स को. सेक्शन 12 मेंशन है क्लॉज नंबर ऑप्शन नंबर ए में. और ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सब्जेक्ट टू एनीथिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्री. इन दो वर्ड से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट गिवन अंडर सेक्शन 12. ये सेक्शन 12 में प्रोवाइड ही नहीं किया गया है, राइट? सेक्शन 12 इज स्टार्टिंग इनिशिएटिंग फ्रॉम द वर्ड नॉन ऑब्स्टेंडिंग क्लॉज दैट इज नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, राइट? तो जब तक हमें प्रोविजन 14 नहीं मालूम होगा, 23J के में दिए हुए लैंडलॉर्ड्स के बारे में जानकारी नहीं होगी, एग्जैक्ट प्रोविजन यहां पर मालूम नहीं होगा, तो हम इसे डिटरमाइन करने में, क्योंकि ये काफी क्लोज हैं एक दूसरे के, काफी नजदीक हैं, तो ये काफी कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस हो सकते थे. तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 डज नॉट अप्लाई टू. बहुत सिंपल सेक्शन है, सिंपल प्रोविजन है. सेक्शन 3 उसमें दी हुई लिस्ट है जिसमें आपको यह चीज देखने को मिल सकती है कि प्रॉपर्टी ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन रेसिडेंशियल पर्पस और प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों ही ऐसे प्रोविजन है जहां पर एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं करता. क्लियर है, बहुत सिंपल है, कुछ एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है. नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज एमपीएलआरसी. द फर्स्ट क्वेश्चन इज question number 56. In which of the following matters jurisdiction of the civil court is not excluded? अब 257 की लिस्ट को एक बार खंगाल लीजिए, है ना, जिसमें रेवेन्यू अथॉरिटीज की एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन बतलाई गई है और कब सिविल कोर्ट इन मैटर्स में
दखलंदाजी या इन मैटर्स को सुन सकता है, जुरिस्डिक्शन रखता है, सुनने की अधिकारिता रखता है, इन चीज़ों को डिमार्केट किया जा सकता है। तो 257 की लिस्ट को आपको देखा जाना चाहिए। और अगर हम क्वेश्चन से या दिए हुए प्रोविजन से फैमिलियर हैं तो हमें प्रामा फेसी ही दिख जाना चाहिए कि पार्टीशन ऑफ होल्डिंग 178, पार्टीशन ऑफ होल्डिंग में ही आपको देखने को मिल जाएगा कि तहसीलदार को जैसे ही क्वेश्चन ऑफ टाइटल देखने को मिलता है, ही विल स्टे द प्रोसीडिंग बिफोर हिम फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, राइट। तो पहली नजर में ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि सिविल कोर्ट, jurisdiction of civil court is not barred, means कहां पर सिविल कोर्ट अपनी jurisdiction को एक्सरसाइज कर सकता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों ऑप्शंस में नहीं। क्लियर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रेवेन्यू ऑफिसर। सो सेक्शन 11 में प्रोवाइड किए गए लिस्ट में, जिसमें 2018 के अमेंडमेंट के बाद से कुछ नए ऑफिसर्स को भी उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है, फॉर एज सर्वे ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, डिप्टी सर्वे ऑफिसर, दे आर द न्यू ऑफिसर्स embedded as the revenue officer under section 11. So commissioner, DSO or superintendent of land record, these are the revenue officers for purpose of section 11. But RI, who is revenue inspector, right, he is not the revenue officer for purpose of MP land revenue code provided under section 11, right. So this is the exact question from the real question paper that was held on 20th March 2021, and the real question from Vidhigya mock test, the same question with the same answer. And this is the big success for Vidhigyans, this is the big success for Vidhigya team, that the same question has been asked either in original examination as well as on our own Vidhigya mock test series that was launched before the real examination date, right. Next, where a partition proceeding is filed before तहसीलदार and a question of title is raised in it, the तहसीलदार। अब ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो सेक्शन 178 में प्रोविजो में आपको मिल जाएगा, राइट। The तहसीलदार shall stay the proceeding for 3 months to facilitate the institution of civil suit for determination of question of title। इस प्रकार के हक संबंधी प्रश्नों का विचारण करने हेतु तहसीलदार अपने समक्ष ऐसी कार्यवाहियों को स्टे कर देगा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। और दिस विल बी द प्रोसीजर जब कभी भी तहसीलदार के समक्ष पार्टीशन ऑफ होल्डिंग के प्रश्न को डिसाइड करते समय, विनिर्णित करते समय इस प्रकार का कोई क्वेश्चन ऑफ टाइटल रेस होता है, राइट। सो दिस इज द प्रोसीजर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 178 प्रोविजो, the question that has been asked from 178, एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आपकी नॉलेज में होना चाहिए। नेक्स्ट, भूमि स्वामी में ट्रांसफर एन इंटरेस्ट इन हिज लैंड। कोई भी भूमि स्वामी अपने भूमि में, अपनी लैंड में इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है, किस मेथड से? बाय वे ऑफ सेल, बाय वे ऑफ मॉर्गेज, बाय वे ऑफ usufruct मॉर्गेज, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल एक्सीडिंग 6 months, नो। 5 acre unrestricted, no. Exceeding ceiling limits, no. But yes, by way of lease, even if the period of lease does not exceed 5 years at a time. So this will be the right answer. Okay. Next, choose the correct answer. In relation to the following, a widow who is occupancy tenant can sell nahi, gift nahi, yes, she can do sublease of the property। यहां पर ध्यान होनी चाहिए आपकी बात, जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया वो भी, दैट इज रिलेटेड टू 168। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी ये बिफोर अमेंडमेंट ऑफ 2018 MPLRC से लिया गया है, राइट। 2018 के संशोधन से पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को पुटअप किया गया है। तो जब आप प्रीवियस प्रोविजन देखेंगे बिफोर अमेंडमेंट ऑफ 2018 इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन 168, तो आपको वहां पर ये देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। Another question is, the भूमि स्वामी may transfer an interest in his land। ये हमने आपको डिस्कस कर ही लिया है, एक रिपीटेड स्लाइड हो गई है। नेक्स्ट, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ए साइंस द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स एंड यू हैव टू प्रोवाइड द इंस्ट्रूमेंट विच कैन नॉट, अंडरलाइन इट, बी कंसिडर्ड एज प्रॉमिसरी नोट। अब इन दिए हुए इलस्ट्रेशंस में से आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि कौन सा दिया हुआ ये प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा।
तो until and unless you are not well versed with the section 4, number 1, the exact essential ingredients provided under promissory for the promissory note under section 4 of Negotiable Instrument Act, as well as the given illustrations in the act itself, I think you might not be able to understand what would be the correct answer. So unconditional होना चाहिए क्या promissory note, अशर्त अंडरटेकिंग, प्रॉमिस अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। तो ऐसी कंडीशन में आपको बस वो शर्त ढूंढना है, अगर कंडीशन लगी हुई है तो प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, इन तीनों में आपको कहीं भी कोई कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी दैट इज सेइंग कि आई प्रॉमिस टू पे बी INR 500 7 days after my marriage with C. So in this particular situation we can find out कि they are incorporating a condition, वो एक शर्त का आरोपण कर रहे हैं, और ऐसी कंडीशन भी प्रॉमिसरी नोट का रूप कभी निर्धारित नहीं कर सकती। क्लियर? So this is illustration based question under section 4 of Negotiable Instrument Act. Next, a court trying an offense under section 138 may order the drawer of the check to pay interim compensation. ये थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन है, सेक्शन 143 से डिपेंड कर रहा है, 143A और 143A में जब तक आप इस प्रोविजन को नहीं देखेंगे, इस प्रोविजन को बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ नहीं देखेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टेज में एप्लीकेबल हो रहा है, तब तक आप अपने आप को कैपेबल नहीं बना सकते टू अंडरस्टैंड एज वेल एज टू अप्लाई योर माइंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? Court trying an offense under 138 may order drawer of the check to pay interim compensation in someone's case when drawer plead not guilty. एक स्टेज, अदर केस in case tried summarily when notice for appearance. तो इन दोनों ऑप्शंस में ये both of the options are not provided under section 143A, but this particular thing that is provided either in summary case or in someone's case when drawer pleads not guilty, this will be the stage, right? And this is the right answer for this particular question. Next question, that is amendment in section 148 of Negotiable Instrument Act, effective from 1st September 2018 shall have a retrospective effect. अब आपको ये फैक्ट बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए कि क्यों कहा जाता है कि आपको ना सिर्फ प्रोविजंस पर, ना सिर्फ इलस्ट्रेशंस पर, ना सिर्फ लैंडमार्क जजमेंट्स और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पर, बल्कि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो रिसेंट में किए जा रहे हैं या हो रहे हैं, if they are the part of syllabus of your judiciary exam, then you must be updated, you must be aware of. अब यहीं पर आप इस चीज को देख सकते हैं कि 143A और 148 ये दो नए प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक जो पुराना ट्रेंड था कि हर बार क्वेश्चन पेपर में 138 से ही क्वेश्चन आ जाता था, हर बार क्वेश्चन पेपर में 141 से ही क्वेश्चन आ जा रहा है, हर बार क्वेश्चन पेपर में 142 से ही क्वेश्चन आ जा रहा है, ऐसा एक जो जाल था उसे हटाने का प्रयास किया गया है बाय ऑनरेबल MP हाई कोर्ट, एंड दैट्स अ वेलकम थिंग। ये एक स्वागत योग्य एक्ट था और मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर को वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, ताकि क्योंकि युद्ध जितना जबरदस्त होगा परिणाम भी उतना जबरदस्त होगा, है ना? तो क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट होना चाहिए, ऐसी हमारी कामना होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड कैपेबल टू सॉल्व दोस पर्टिकुलर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, देन डेफिनेटली इजी क्वेश्चंस तो फिर कहीं मायने नहीं रखते ना, फिर इजी प्रश्न तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा लेवल, हमारे प्रिपरेशन की स्टेज दोनों ही अप लेवल में होनी चाहिए, इन दोनों की अभिवृद्धि ऊपर होनी चाहिए। सो द क्वेश्चन वाज, इट इज बेस्ड ऑन द रिसेंट जजमेंट, जिसमें 148 और 143A के एप्लीकेशन को लेकर के वेदर इट विल बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैक्ट को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की और अपना जजमेंट इस पर्टिकुलर केस लॉ के माध्यम से निर्दिष्ट किया। एंड द जजमेंट वाज सुरेंद्र सिंह देसवाल वर्सेस वीरेंद्र गांधी। कई सारे पर्संस, कई सारे एस्पिरेंट्स के क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मैंने अपने कैंडिडेट्स में देखा, जिनसे बात हुई, जिनसे मैसेजेस में बात हुई, दे वर टेलिंग कि यस ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सर समझ में नहीं आया, पढ़ा नहीं, अपडेट नहीं रहे, तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस अलग रहे। कॉन्सिक्वेंसेस ये रहे कि इस प्रकार के क्वेश्चन में तुक्का भी नहीं चलता, है ना? अगर हम थोड़े बहुत भी अवेयर नहीं हैं तो ऐसी कंडीशन में हम
डिमार्केट करने की कंडीशन में भी नहीं होते, उन क्वेश्चंस को हम एलिमिनेट करने की सिचुएशन में नहीं होते, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें अपडेटेड रहना बेहद जरूरी है। सो अब आपको ये याद होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कि सेक्शन 148 का एप्लीकेशन रेट्रोस्पेक्टिवली होगा, ये पर्टिकुलर फैक्ट किस पर्टिकुलर जजमेंट में डिसाइड किया गया, और वो उस पर्टिकुलर जजमेंट, अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पर्टिकुलर जजमेंट को इमीडिएटली सर्च करें। सिर्फ नाम जानना बेहतर नहीं होगा, कोशिश करें व्हाट वाज द इशू, व्हाट वाज द स्पेसिफिक फैक्ट्स इन अ नटशेल, क्या तथ्य थे और क्या इशू था, क्या डिसाइड किया गया, कितने जजेस की बेंच थी, है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपके द्वारा इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक जजमेंट्स को देखा जाना चाहिए, आपके द्वारा देखा जाना चाहिए। तो this was the first part, this was the first part for the analysis of Madhya Pradesh civil justice examination that was recently held in 20th March 2021. So I hope that you might be clear in some of the important topics, important points, और मैं आशा करता हूं कि कुछ थोड़ा सा सेशन ज़्यादा खिंच गया है, मुझे मालूम है, लेकिन इस बीच में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, वो आप तक संप्रेषित करना बहुत ज़रूरी थी। इसलिए मेरी आशा है और मेरी शुभकामनाएं हैं टू ऑल ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड द थिंग, क्योंकि न्यायाधीश बनने के लिए जो आवश्यक गुणधर्म है वो हमारे अंदर अवधारित होने चाहिए इसी प्रिपरेशन की स्टेज में। तो आप सक्षम हैं, ये अच्छी बात है, आप सक्षम बने, ये दौर आना चाहिए, राइट। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में वी हैव डिस्कस सो मच थिंग एज टू 6 ऑफ द सब्जेक्ट आई थिंक डिस्कस वी हैव डिस्कस 6 विषयों को लेकर के हमने इन चीज़ों को एनालाइज करने का प्रयास किया। सो मैं फिर से आप सबको शुभकामनाएं दे रहा हूं, और उन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को हु आर क्रॉसिंग द एक्सपेक्टेड लिमिट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन above 120 marks, so this is a kind of suggestion and request to those particular candidates कि अपने तैयारी इमीडिएटली 1-2 दिन के रेस्ट के बाद शुरू कर दीजिए। 1-2 दिन आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद से अपनी तैयारी आप फिर से नए स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि दोनों की प्लानिंग थोड़ी अलग होती है, चाहे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इसकी अपनी एक स्ट्रेटजी आप फ्रेम कीजिए, और विधिज्ञ जहां कहीं भी आपके साथ इस यात्रा में रह सकता है, इस जर्नी में रह सकता है, वी विल बी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। सो गिव इट अ हार्ड टेस्ट, राइट। एक कठिन मेहनत के साथ इसे आप चुनौती के रूप में देखिए, एक चुनौती के रूप में इसे देखा जाना चाहिए और चुनौती के रूप में इसे दिग्दर्शित होना चाहिए। और जिन कैंडिडेट्स के अपने नंबर या स्कोर थोड़े कम आ रहे हैं, उनको भी अभी प्रिपरेशन की स्टेज तक तो लगे ही रहना चाहिए जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते। वेदर यू आर स्कोरिंग अबव 110, अबव 115, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि जब तक रिजल्ट की स्थिति क्लियर नहीं हो जाती, तब तक आपको अपने इस रण को ड्रॉप आउट नहीं करना चाहिए। अपने रण में बने रहिए, अपने युद्ध स्थल पर बने रहिए, एक योद्धा की तरह। और फिर से वही स्टेटमेंट, वही पंक्तियां मेरे जहन में आती हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित यशकृता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो इन पंक्तियों से अपने आप को मजबूत बना के रखिए, तटस्थ बना करके रखिए, और ईश्वर पर आस्था रखिए। निश्चित रूप से आप अपनी सफलता तक इस जर्नी को, इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। थैंक यू।